Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Vibha. Students, today I am here with a new chapter of class 4th. The chapter number is also 4 and the name of the chapter is A Letter to My Friend. The book name is Milestone English Course Book. Today we will discuss about a story uh, which is related to a boy or a child who is writing a letter to his friend. Actually he is sharing his experience with his friend because he has already faced such same situation and same condition which his friend is going through, so he just want try to motivate his friend. ठीक है, अपने फ्रेंड को वो मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है. दैट्स वाई ही राइट्स अ लेटर बाय शेयरिंग हिज ओन एक्सपीरियंस बाई गोइंग थ्रू दिस द सेम कंडीशन. जैसे कि उसके फ्रेंड जो झेल रहा है वैसी कंडीशन से वो एक बार खुद से निकल चुका है, इसलिए वो उससे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है एंड ही वॉज ट्राइंग टू मोटिवेट हिम. सो लेट्स सी, let's begin. What do you understand by the word communication? First, the author want to discuss with you the word communication. What is the meaning of communication? Students, most of the students, those who are my regular students, know very well that I always discuss these two terms, conversation and communication. When you talk generally with someone, it is called communication. When आप जब generally किसी से बात करते हो, it is called communication. But when you talk with someone in questionnaire form, means you are questioning and answering form, such type of talking is come in the category of conversation. ठीक है, तो this is the basic difference between the communication and conversation. So story begins here. The author want to discuss it with you. Suppose you are planning to a trip with a friend who lives in another city. You have to discuss some important details with your friend. वो ऑथर सेज कि अगर आप किसी कभी सपोज कर रहे हो कि आपको किसी प्लानिंग पर जाना है, किसी ट्रिप पर अपने फ्रेंड के साथ, हु लिव इन अनदर सिटी, वो किसी दूसरी सिटी में रहता है, एंड यू have to discuss some important details with your friend and need to make note of these things so that you don't miss anything. आपको वहाँ जाना है और डिस्कस करना है कुछ बहुत some important details आपको रखनी पड़ेंगी with your friend to needs make some important thing with you. ठीक है, ताकि आप कोई चीज़ ऐसी ना हो कि वो मिस कर दें. what are the different ways in which you can communicate, tell your partner. तो वो कह रहे हैं कि आप किस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, tell your partner. तो ये एक तरीके से आपको उन्होंने टास्क दिया हुआ है, you have to discuss with your friend. So go through the story. Reading and comprehension. Reading and comprehension, we will start the reading chapter and see the detail of this chapter. Let's read. पढ़ना शुरू करते हैं. T14 महालीपट्टी मदुरई 625001 7th May 2018. डियर गीता. यहाँ पर एक बॉय है, देयर इज़ अ बॉय हु इज़ राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड गीता. ठीक है, he started how are you, he started writing how are you. First he asked about his welfare. I hope दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ. वो कहता है मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप जब आपको ये लेटर मिलेगा तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, मतलब मैं आपकी अच्छी हेल्थ की कामना करता हूँ. आई एम डूइंग वेल हेयर, मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ. आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, कल मुझे आपका एक लेटर मिला. यू रोट दैट यू वर फीलिंग डिसहार्टेंड. द मीनिंग ऑफ डिसहार्टेंड, सैड एंड डिसअपॉइंटेड. वो कहता है कि कल मुझे आपका एक लेटर मिला और आपने लिखा था कि तुम बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड फील करो, मीन्स बहुत सैड फील करो, बिकॉज यू वर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन योर स्कूल्स एनुअल डांस कॉम्पिटिशन. क्योंकि तुम अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन के डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, निराश हो, दुखी हो. एनुअल फंक्शन क्या होता है क्लास, यू नो वेरी वेल. एनुअल मीन्स द समथिंग हैपन इन एवरी ईयर. एनुअल चीज़ होती है, जो भी चीज़, एनुअल एग्ज़ाम जैसे आप लोग देते हो, ठीक है, तो एनुअल वो चीज़ होती है जो इट हैपन वंस इन अ ईयर. ठीक है, एक ईयर में ये एक बार हैपन होती है.
आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल वॉट यू आर गोइंग थ्रू। वो कहता है कि मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि इस समय तुम कैसा महसूस कर रहे हो। आई हैव गॉन थ्रू द सिमिलर एक्सपीरियंस माई सेल्फ, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही सेम मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा ही एक्सपीरियंस मैंने भी किया था अपनी लाइफ में। इट वॉज द थर्ड ईयर एट अ न्यू स्कूल। वो कहते हैं ये मेरा थर्ड ईयर था किसी एक नए स्कूल में। द एनुअल डे वॉज अबाउट टू टेक प्लेस एंड प्रिपरेशन फॉर इट वर इन फुल स्विंग। फुल स्विंग मीन्स होता है बहुत ज़ोरों शोरों से जो बोलते हैं आप, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। तो कहते हैं बहुत ज़ोरों शोरों से लोग जो है वो उसकी तैयारियों में, सभी बच्चे सभी टीचर्स जो है वो एनुअल डे की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। इन द many students from my class got an opportunity to participate in some or the other event। वो कह रहे हैं he says that मेरे क्लास के बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने किसी इवेंट में, किसी ने किसी इवेंट में जो है वो पार्टिसिपेट किया हुआ था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन द, नेक्स्ट देखते हैं। वो कहता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा इन द सेलिब्रेशन। वो कहता है कि मुझे भी लग रहा था कि मैं भी इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करूँगा। हाउ एवर माई एक्साइटमेंट फिजल्ड आउट। वो कहता है मेरा जो एक्साइटमेंट था वो तब फिजल्ड आउट हो गया, इधर मीनिंग लिखा हुआ है, तब वो ख़त्म हो गया। व्हेन आई वॉज टोल्ड दैट आई कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। जब मुझसे ये कहा गया कि तुम इस सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं बन सकते हो। दिस ब्रोक माई हार्ट। इससे मेरा दिल बिल्कुल टूट गया, मतलब मैं बहुत दुखी हो गया। आई वॉज वेरी सैड, मैं बहुत सैड था। आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी टास्क। बल्कि मैं इतना ज़्यादा सैड हो गया था कि मैं किसी भी काम में, किसी भी टास्क पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा, ध्यान नहीं लगा पा रहा था। एंड आई यूज़ टू बी इरिटेबल एट ऑल द टाइम। और इसकी वजह से मैं क्या होता था, हर छोटी छोटी बात पे एनॉयड, मैं चिढ़ जाता था, मेरा मूड ख़राब रहता था, मुझे गुस्सा आता था, ठीक है। आई यूज़ टू बी इरिटेबल। द डे ऑफ द इवेंट अराइव्ड। धीरे धीरे जो एनुअल फंक्शन का डे था वो धीरे धीरे पास आ गया। व्हेन आई सॉ माई क्लासमेट परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन ऑन माई चीक्स। वो कहता है कि जब मैंने अपने क्लासमेट्स को, मैंने अपने दोस्तों को देखा कि वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरी आंखों से आंसू जो है वो मेरे चीक्स पर होकर नीचे गिरने लगे, ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने भी ऐसा ही महसूस किया कि बाकी सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे रोना आने लगा। ही व्हेन आई वॉज क्राइंग। वो कहता है कि जब मैं रो रहा था, माई क्लास टीचर मिसेस कल्याणी सॉ मी। तो मेरी जो क्लास टीचर थी मिसेस कल्याणी, उन्होंने मुझे देखा। शी केम अप टू मी, वो मेरे पास आई एंड आस्क्ड मी द रीज़न फॉर माई सैडनेस। और उन्होंने मेरे इस सैडनेस का रीज़न पूछा कि वाई यू आर सैड। as you can see in the picture, she is his class teacher. The warm expression on her face encouraged me to open up to her। वो कह रहे हैं जब उन्होंने बहुत इतने प्यार से मेरी तरफ देखा, warm expression मीन्स होता है प्यार से, on her face encourages me, तो उससे मुझे थोड़ी encouraged me मीन्स होता है मुझे हिम्मत मिली, to ओपन अप टू हर, कि मैं अपनी सारी बात को ओपन करके कह दूँ, ठीक है, अपनी सारी बातें कह पाऊँ। आई क्राइड अ लॉट, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोया। वाइल टेलिंग हर माई स्टोरी, जब मैं उन्हें अपनी पूरी बात बताने लगा। आफ्टर द हियरिंग मी आउट, उन्होंने मुझे सुनने के बाद, शी गेव मी अ हग एंड बिगिन टू रीअश्योर मी, और उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मुझे रीअश्योर किया। रीअश्योर मीन्स होता है क्लास किसी को, मतलब आप जब किसी को ये हिम्मत देते हो कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं गलत होगा, अब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो रीअश्योर होता है ये मीनिंग। रीअश्योर मीन चीयर अप समवन और रिमूव हिज और हर फियर, जब उसका डर आप निकाल दो, इसको रीअश्योर करो कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तो तुम्हारे साथ, इस तरीके से, ठीक। शी आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू वाई आई वॉज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे पता है कि मैं क्यों, किस वजह से मुझे परमिशन नहीं मिली, क्यों मुझे अलाउड नहीं किया गया पार्टिसिपेट करने के लिए। आई डिड नॉट हैव एनी आंसर टू दैट, मेरे पास कोई आंसर नहीं था इस चीज़ का। देन शी आस्क्ड मी इफ़ आई वॉन्टेड टू नो द रीज़न। वो कहते हैं क्या, तो वो पूछती हैं, उनकी जो क्लास टीचर थी वो कहती है क्या तुम जानना चाहते हो कि रीज़न क्या है। आई नॉडेड, नॉडेड मीन्स होता है सर हिलाना, सर हिलाकर यस और नो बोलना, जैसे होता है बच्चे सब कभी कभी सर हिलाते हैं कि यस नो, नो कभी इधर ऐसे, ये जो आप नोडिंग करते हो, इधर उधर सर हिला मूव करते हो, नोडिंग। आई नोडेड, शी टुक मी
टू द ऑर्गेनाइजर, वो मुझे कहाँ लेकर गई, ऑर्गेनाइजर के पास। हु हैड चूजन द पीपल परफॉर्मिंग एट इवेंट, शी सैड फॉलो मी, वो मुझे किसके पास ले गई, जिसने इस पूरे इवेंट को, मतलब एनुअल फंक्शन डे पे एक होता है ना टीचर्स ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, इसकी सारी चीज़ें, उसके पास सारी लिस्ट होती हैं, सारे बच्चों के नेम होते हैं कि कैसे क्या प्रोग्राम होगा, इस तरीके से जो प्रोग्राम की हेड थी वो उनके पास उसको लेकर गई और उन्होंने लेकर जाने लगी और उन्होंने कहा फॉलो मी, तुम भी मेरे साथ चलो। मिस श्री विद्या सॉ अस वॉकिंग अप टू हर एंड बिकम एंक्शियस, मिसेस श्रीविद्या जो थी उन्होंने हमें देखा कि हम की तरफ आ रहे हैं तो वो भी एंक्शियस मीन्स परेशान हो गई। क्या देखकर, अपॉन सीइंग मी इन टीयर, कि मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे, मैं तो बहुत रो रहा था, तो वो भी मुझे देखकर परेशान हो गई। व्हेन शी फाउंड आउट द रीज़न फॉर माई टीयर्स, जब उन्हें मेरे रोने का रीज़न पता चला तो उन्होंने कहा था शी गेव मी हग, उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। शी एक्सप्लेन्ड दैट आई हैड नेवर प्रेजेंटेड एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, वो कहती, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जो है कभी भी क्लास के सामने कभी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दी, कभी कोई चीज़ मैंने परफॉर्म करके दिखाया ही नहीं। नॉर आई हैड एवर पार्टिसिपेटेड इन एनी कॉम्पिटिशन और इवेंट, और ना ही मैंने उससे पहले कभी किसी इवेंट में या किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। इवन दो आई गॉट कॉन्स्टेंट इनकरेजमेंट आई नेवर इवन स्पोक इन द क्लास, जबकि मुझे लोग हमेशा इनकरेज करते थे कि तुम भी करो, कोशिश करो, सभी लोग मुझे इनकरेजमेंट देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी मतलब किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। ठीक है, और क्या हुआ, और बल्कि यहाँ तक कि होता था कि मैं क्लास में बोलता तक नहीं था। आफ्टर दैट शी फर्दर एक्सप्लेन्ड, और फिर आगे उन्होंने अपनी बात कहते हुए कहा दैट द एनुअल कॉम्पिटिशन वॉज अ बिग इवेंट, और एनुअल डांस कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत बड़ा इवेंट होता है, विच मैनी पीपल कम टू सी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, भाई सभी बच्चे होते हैं, सभी पेरेंट्स के पेरेंट्स होते हैं और गेस्ट भी आते हैं। शी आस्क्ड मी to imagine how would I feel if I had made a mistake while performing at such an event, तो वो मुझसे कहती हैं कि इमेजिन करो कि अगर तुम इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो और तुमसे कोई गलती हो जाती, क्योंकि तुमने आज से पहले कभी कोई इवेंट किया नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो तुम्हें कैसा फील होगा। शी ऑल्सो टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया दैट शी डिड नॉट वॉन्ट मी टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सो मैनी पीपल अनप्रिपेयर्ड, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कभी नहीं चाहती कि तुम कभी भी बिना तैयारी के इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करो ताकि तुम और परेशान हो। आई अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज ट्राइंग टू से, मैं तुरंत समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही थी। आई प्रोमिस्ड हर दैट, मैंने उनसे उस दिन वादा किया कि दैट आई वुड वर्क हार्ड एंड पार्टिसिपेट इन एज मैनी इवेंट्स एज आई कुड, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि आज के बाद से मैं हर इवेंट में, जितने इवेंट्स में मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ उन सब में मैं पार्टिसिपेट करूँगा। आफ्टर दैट डे आई मेड मैनी बिग एंड स्मॉल प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द क्लास, उसके बाद मैंने बहुत सारी छोटी बड़ी जो भी प्रेजेंटेशन होती थी अपने क्लास के सामने मैं देता था। वाइल डूइंग दिस, जब मैं ये करता था, आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द मैनी ऑफ माई वीकनेसेस, जब मैंने ये करना शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे अपनी सारी कमियाँ पता चलना शुरू हुई कि मेरे अंदर क्या क्या कमियाँ हैं। एंड वर्क ऑन देम, और जब मुझे अपनी वीकनेसेस पता चली तो मैंने उनके ऊपर वर्क करना शुरू किया। देयर वॉज नो स्टॉपिंग मी आफ्टर, उसके बाद से मैं कभी नहीं रुका, मुझे कोई चीज़ नहीं थी जो मुझे रोकती थी। यू विल बी प्लीज्ड टू नो दैट आई पार्टिसिपेटेड इन अवर स्कूल एनुअल डे द ईयर आफ्टर दैट, वो कहते तुम्हें शायद तुम्हें सुनकर बहुत खुशी, प्लीज्ड मीन्स होता है खुश होना, बी हैप्पी, ये देखो यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, प्लीज्ड मीन्स हैप्पी। वो कहता है तुम्हें ये जान के बहुत खुशी होगी कि नेक्स्ट ईयर जो एनुअल डे हुआ उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट आई डिडेंट जस्ट पार्टिसिपेट, और बल्कि वास्तव में ना ही मैंने केवल पार्टिसिपेट किया बल्कि मैंने क्या किया, वो कहता है कि मैंने ना ही केवल पार्टिसिपेट किया बल्कि आई वॉज द हेड ऑफ द स्कूल, बल्कि मैं उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वो और उस जो स्कूल में जो इवेंट्स हो रहे थे उसका मैं हेड बना था। हेड बॉय बनाते हैं ना जैसे क्लास में, कि क्लास की पूरी परफॉर्मेंस और बच्चों के बारे में कौन बताएगा, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन कौन देगा, इस तरीके से मैं उसका हेड बॉय भी बना हुआ था, हेड स्टूडेंट। एवरीवन प्रेज्ड मी एंड माय एफर्ट्स, वो कहते हैं हर किसी ने मेरे उस प्रेज्ड मीन्स होता है, प्रेज मीन्स तारीफ करना, एडमायरेशन, ठीक है। वो कहते हैं हर किसी ने मेरी तारीफ़ की और मेरे जो भी मैंने एफर्ट्स मीन्स जो भी मैंने कोशिशें की थी। आई वॉज सो हैप्पी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। ये देखो ये सारे बच्चे हैं, ये उनका सबका हेड बन गया, ये सबको समझा रहा है। तो वो कहते हैं इफ़ मिस श्रीविद्या हैड नॉट स्टॉप्ड मी फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग दैट डे, वो कहते हैं अगर मिस श्रीविद्या उस दिन मुझे नहीं रोकती पार्टिसिपेट करने से,
आई वुड नेवर नोन माई वीकनेसेस, तो मुझे उस मेरी कमियाँ कभी नहीं पता चलती। द डिसीज़न दैट हैड वंस ब्रोकन माई हार्ट, वो डिसीज़न जो मेरी मैम ने उस समय मेरे लिए लिया, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सबसे अलग हो गया हूँ, सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो कहता है वॉज लेटर समथिंग दैट आई फेल्ट वेरी थैंकफुल फॉर, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी। अगर उस दिन मुझे नहीं रोका जाता तो मैं कभी अपनी कमियों को इम्प्रूव नहीं करता और मैं कभी इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। जब मुझे पता चला कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है कि मैं बोलता नहीं हूँ कुछ भी, कभी किसी में चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, बिल्कुल डल सा रहता हूँ, तो मैंने उस पर वर्क किया और मैंने उसको अच्छे से परफॉर्म करके दिखाया और सबकी प्रेज़ भी मुझे मिली। प्रेज़ मीन्स तारीफ। नेक्स्ट, आई टोल्ड यू दिस स्टोरी। अब वो अपने लेटर में, जिस फ्रेंड को वो ये लेटर लिख रहा था, उसने ये पूरी स्टोरी जब उसको बता दी फुल लेटर में, तो वो कहता है आई टोल्ड यू दिस स्टोरी, ये स्टोरी मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ टू इनकरेज यू, ताकि तुम्हें भी वो हिम्मत मिले जो मुझे मिली थी। टू फाइंड आउट द रीज़न, ताकि तुम्हें उस रीज़न पता चल सके, कारण पता चल सके। वाई यू वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, कि तुम्हें क्यों, अलाउड मीन्स होता है परमिशन देना, कि तुम्हें पार्टिसिपेट करने की क्यों परमिशन नहीं मिली। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस एंड इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ, वो कह रहे तो तुम भी अपनी कमियों को पहचान सकते हो और उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो, उनको अच्छा कर सकते हो। डू इट एंड यू विल सी हाउ एवरी वन विल प्रेज यू, इसको करो, इसको करने की कोशिश करो और तुम देखोगे कि हर व्यक्ति, जब तुम इससे अपनी कमियों को दूर कर लोगे तो कैसे हर व्यक्ति तुमसे तुम्हारी तारीफ करेगा। प्लीज़ डू इट अ थॉट, प्लीज़ गिव इट, सॉरी, प्लीज़ डू गिव इट अ थॉट, वो कहते हैं प्लीज़ इस बात पे सोचना ज़रूर, जो मैंने तुम्हें पूरी बात बताई है ऊपर, पूरी स्टोरी, इसके बारे में सोचना ज़रूर। इफ़ माई सजेशन हेल्प यू एंड थिंग्स वर्क आउट फॉर यू, वो कहते हैं अगर तुम्हें मेरा ये सजेशन तुम्हारी हेल्प करे थोड़ी सी, या तुमको अच्छा लगे इसको करने में, प्लीज़ राइट मी अ लेटर, तो प्लीज़ मुझे एक लेटर ज़रूर लिखना, एंड टेल मी ऑल अबाउट इट, और मुझे भी बताना कि तुमने कैसे इम्प्रूव किया, तुम में क्या कमियाँ थी, और मुझे भी लेटर लिख के तुम बताना। आई विल वेट फॉर योर लेटर, प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, वो कहता है कि मुझे तुम्हारे लेटर का इंतज़ार रहेगा कि कब तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे और कब तुम भी मुझे ऐसे ही बताओगे कि तुमने भी अपनी कमियों को दूर करके और इवेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और सभी ने आपकी तारीफ़ की। वो एंड में वो कहता है प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, और रिगार्ड्स मीन्स भाई जैसा होता है नमस्ते बोलते हैं ना, कि बड़ों को नमस्ते बोलना, इस तरीके से। वो कहता है मेरी गुड विशेज़ अपने मम्मी पापा को यानी कि अंकल आंटी को भी देना। योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र कार्तिक, यहाँ पर ये बॉय है जिसका नेम है कार्तिक। कार्तिक ने किसको लेटर लिखा था स्टार्टिंग में, वो उस गर्ल का क्या नेम था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट गर्ल, द गर्ल नेम वाज गीता, ठीक है, उसने अपनी फ्रेंड को इनकरेज करने के लिए ये लेटर लिखा था। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी, अ लेटर टू माई फ्रेंड। आई होप यू विल गेट द complete answer. It was very motivational story for the little students. So we will meet in the next story of your class. Till then, thank you. Have a nice day.